کہ کراچی یونین آف جرنلسٹ دستور کے سالانہ انتخابات کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے، جس میں دی ڈیموکریٹس پینل نے ایک بار پھر میدان مار لیا ہے، جبکہ فرینڈز پینل ہار گیا۔ بات کریں گے سعادت حسین سے۔ بتائیے گا سعادت۔ جی بالکل، اس وقت میں پریس کلب میں موجود ہوں اور یہاں پہ آج جو ہے کراچی یونین آف جرنلسٹ کی جانب سے جو ہے سالانہ انتخابات کا انعقاد کیا گیا تھا، جس کے رزلٹ کا جو ہے وہ اناؤنس کر دیا گیا اور جو ڈیموکریٹ پینل ہے انہوں نے جو ہے کامیابی حاصل کی ہے۔ میرے ساتھ جو فرید عالم موجود جو تیسری بار گورننگ باڈی کے ممبر جو ہے منتخب ہوئے ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں۔ بتائیے گا کہ کتنا خوش آئند ہے پوری پینل کے لیے، تمام ممبران کے لیے آج کے انتخابات اور اس کا نتائج؟ جی، آج جو انتخابات ہوئے یہ اس لحاظ سے بھی خوش آئند ہے کہ اس میں ایک صحت مند مقابلہ ہوا، کیونکہ دستور کے ہی دونوں پینل تھے، ایک پینل جیتا ہے، دوسرا پینل ان کے مقابلے میں کھڑا ہوا تھا، وہ ہارا ہے۔ ہارنے والے بھی ہمارے ہی ہیں، جیتنے والے بھی ہماری ہیں، تو یہ ایک حوصلہ افزا ہے تمام صحافیوں کے لیے جو صحافتی میدان کے اندر اپنے دوسرے جرنلسٹ بھائیوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو کے یو جے دستور ہر سال انتخابات کا انعقاد کرتی ہے اور یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ آج جو منتخب باڈی کو لوگوں نے منتخب کیا، جس باڈی کو، وہ باڈی کا ہمارا بھی عزم اب یہی ہے کہ پورے سال جو بھی صحافیوں کے ہمارے مسائل ہوں گے، جو بھی ممکنہ ان کی مدد اور تعاون ہو سکا، کے یو جے دستور اپنے پلیٹ فارم سے صحافیوں کو تمام طرح کی سہولیات بھی فراہم کرے گی، ان کی مدد کے لیے بھی 24 گھنٹے دستیاب ہوگی، کیونکہ کے یو جے دستور نے جو اس وقت پوری باڈی الیکٹ ہوئی ہے اس میں تمام کے تمام سینئر جرنلسٹ شامل ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ پورے صحافی برادری کی ان کو سپورٹ بھی حاصل ہے۔ بہت شکریہ۔ جی بالکل، آپ نے جانا کہ تیسری بار منتخب ہونے والے فرید عالم کا کہنا تھا کہ بالکل آج جو ہے کامیابی دوبارہ حاصل کی ہے اور اب جو ہے کراچی یونین آف جرنلسٹ کی جانب سے جو صحافیوں کے جو مسائل ہیں فیلڈ کے اوپر اور دوسرے اداروں کے اندر، اس کے حوالے سے جو ہے وہ آواز اٹھائیں گے اور جو ان کے مسائل ضرور حل کریں گے۔ جی، ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی ایسٹ سید شکیل احمد کی معروف مذہبی شخصیت علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی سے ملاقات ہوئی ہے، جس میں شہر اور ضلع شرقی کی بہتری کے معاملات اور دیگر امور پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ بات کریں گے شعیب مختار سے۔ شعیب، ملاقات کا احوال بتائیے گا۔ جی بالکل، اب سے کچھ دیر قبل جو ہے ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی ایسٹ سید شکیل احمد کی معروف مذہبی شخصیت علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی سے ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں شہر و ضلع شرقی کی بہتری کے معاملات پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ اس موقع پر علامہ سید شہنشاہ نقوی کا کہنا تھا سید شکیل احمد ضلع شرقی کی بہتری کے لیے اپنی ذمہ داریاں اچھی طرح نبھا رہے ہیں۔ امید ہے کہ رمضان المبارک یوم علی کے حوالے سے ڈی ایم سی ایسٹ اچھے بلدیاتی انتظامات کرے گی۔ دعا گو ہے کہ ایڈمنسٹریٹر ایسٹ اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھاتے رہے۔ اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی ایسٹ شکیل احمد کا کہنا تھا کہ علامہ سید شہنشاہ نقوی سے دعائیں حاصل کرنے آئے ہیں۔ نیو رضویہ سوسائٹی کے جو بلدیاتی مسائل ہیں انہیں حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ بطور ایڈمنسٹریٹر اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ جی ٹھیک ہے شعیب، ابھی آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ ایم کیو ایم پاکستان کے مرکز بہادر آباد سے متصل پارک میں مہاجر یوتھ فورم کا شمولیتی اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، سینئر ڈپٹی کنوینر ڈاکٹر فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال نے شرکت کی ہے۔ بات کریں گے شعیب مختار سے ہی۔ بتائیے گا شعیب اس حوالے سے۔ جی بالکل، اب سے کچھ دیر قبل جو ہے ایم کیو ایم پاکستان کے مرکز بہادر آباد سے متصل پارک میں مہاجر یوتھ فورم کا شمولیتی اجلاس ہوا ہے۔ اس اجلاس میں ایم کیو ایم کی کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، سینئر ڈپٹی کنوینر ڈاکٹر فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال نے خطاب کیا ہے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ نوجوان ہی اس ملک کے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ خالد مقبول صدیقی کی جانب سے اجلاس میں شریک نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے انہیں مہاجر یوتھ فورم میں خوش آمدید کہا گیا۔ اس موقع پر رکن رابطہ کمیٹی زاہد منصوری اور متعلقہ شعبے کے ذمہ داران بھی موجود تھے۔ جی ٹھیک ہے شعیب، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ قیام پاکستان سے قبل بنے کنویں کراچی سے 37 کلومیٹر دور ڈملوٹی میں آج بھی موجود ہیں۔ پہلے ان کنویں سے شہری کو پانی فراہم کیا جاتا تھا، لیکن اب یہاں صرف خاک اڑ رہی ہے اور مشینری زنگ آلود ہو چکی ہے۔ شہر قائد سے 37 کلومیٹر دور میمن گوٹ میں واقع ڈملوٹی کے کنویں قدیمی ورثے کی حیثیت رکھتے ہیں۔
40 फीट से ज्यादा गहरे कुएं अंग्रेजों के जमाने में 1929 में खोदे गए थे, जिनकी हालत दिन ब दिन बोसीदा होती जा रही है और मशीनरी जंगालूद हो चुकी है। डमलोटी की कुएं उस दौर के इंजीनियर का शाहकार थे। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के चीफ इंजीनियर इंतखाब राजपूत के मुताबिक डमलोटी कुओं से मलीर के करीबी इलाकों में 2 मिलियन गैलन पानी फराहम किया जा रहा है। मलीर के साथ जो कुएँ थे वो तो वेल ख़त्म ही हो गए। अब इस वक्त 12 वेल हैं मौजूद जो इस वक्त एग्जिस्ट कर रहे हैं। उसमें से एक वेल नंबर 6 है जो कि जिसमें कि पानी है, बाकी खुश्क हो चुके हैं। तो वहाँ से हम तकरीबन 2 MGD पानी उठाते हैं जो कि हमारी कॉलोनीज़ हैं और इलाके के जो देहात वगैरह हैं वहाँ पानी जाता है। अंग्रेजों के दौर में खोदे गए इन कुओं की तादाद 22 थी, जिनमें से अब 12 बाकी रह गए हैं और इस वक्त सिर्फ एक कुएं से पानी लिया जा रहा है। डमलोटी स्कीम के नाम से ये कुएं इस वक्त कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के ज़ेरे इंतजाम हैं। चीफ इंजीनियर इंतखाब राजपूत कहते हैं कि अब ये कुएं मुरम्मत के काबिल नहीं, इन्हें महज विरसे में शामिल किया जा सकता है। हो तो सकता है मगर उनकी बहाली में जितने यानी कि पैसे खर्च होंगे तो उससे कम में हम पंपिंग स्टेशन बना के दरिया सिंध से जो है ना पानी उठा सकते हैं। तो 7 MGD तो पानी पंप होता था वहाँ से। तो आजकल तो मोटर भी जो है ना छोटी मोटर भी 7 MGD की होती है, तो हम कहीं भी पंप लगा के और वो चला सकते हैं इसमें। तो इसकी बहाली इसको तो अब आसार कदीमा में के महकमे को इंस्पेक्शन लेना चाहिए और आसार कदीमा में इसको एक म्यूज़ियम बना देना चाहिए। बड़ी तारीख़ी इमारतें हैं। कराची से कुछ फासले पर मौजूद ये कुएं बासियों की प्यास बुझाने का बेहतरीन जरिया हो सकते थे, लेकिन आवाम ने रेती चोरी कर करके इन्हें नकारा बना दिया। 1929 में बनने वाले ये डमलोटी के कदीम कुएं आज भी कराची के बासियों को पानी फराहम करने का अहम जरिया हैं। कैमरामैन जिशान नवाब के साथ इकरा अवान, सिटी 21 कराची। सिंध हुकूमत के तर्जुमान और मुशीर कानून मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि कराची के शहरियों के लिए एक और खुशखबरी है। सिंध हुकूमत ने तरक्याती कामों का एक और वादा पूरा कर दिया है। गुलिस्तान जौहर में जौहर चुरंगी पर फ्लाईओवर का काम मुकम्मल होने के करीब है, अगले माह काम शुरू कर देगा। मुर्तज़ा वहाब ने जौहर चुरंगी का दौरा किया, फ्लाईओवर पर काम का मुआयना किया। इस मौका पर उन्होंने खुशखबरी दी कि अप्रैल से फ्लाईओवर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। फ्लाईओवर की तकमील से ट्रैफिक जैम के मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने गुलिस्तान जौहर के अवाम से यह मनसूबा बनाने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि हम अपने वादों की पासदारी और अवाम की खिदमत पर यकीन रखते हैं। शहर कायद में एक तरफ लोगों को मीठा पानी पीने को मैसर नहीं तो दूसरी जानिब हज़ारों गैलन पानी सड़कों पर ज़ाया हो रहा है। कराची यूनिवर्सिटी के अक़ब में बरसों से टूटी मीठे पानी की लाइन की मरम्मत नहीं की जा सकी है। एक तरफ घरों में नल के सूखे, लोग बूंद बूंद मीठे पानी को तरस रहे हैं, दूसरी तरफ बरसों से टूटी पाइपलाइन से हजारों गैलन मीठा पानी जाया हो रहा है, मगर किसी को कोई फिक्र नहीं। कराची यूनिवर्सिटी के अकब में पानी की पाइपलाइन टूटने से साफ पानी सड़कों में बहने लगा। जामे कराची के अकब में मौसमियात से जाने वाली सड़क पर मीठा पानी गटर लाइनों में शामिल होकर उबलने लगा है। यहाँ कायम बस्ती के लोग मीठे पानी को रक्षा धोने के लिए भी इस्तेमाल करने लगे। साफ पानी सड़कों पर आने से इलाके में डेंगू मच्छर की अफजाइश से डेंगू फैलने का भी खतरा हो गया। इलाका मकीनों को कहना है कि गुज़िश्ता कई सालों से मीठे पानी की लाइन टूटी हुई है। कई बार दरखास्तें दी मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी 25 साल से ये पानी चल रहा है और आज तक दरखास्त भी यूनिवर्सिटी में लिखा होगा, हमारा यूनिवर्सिटी में वो आते नहीं है, कोई भी नहीं आता है। मीठा पानी है ज़ाया हो रहा है, लोगों को शहर में मिलता नहीं है पीने के वास्ते। इधर लोग कपड़े धो रहे हैं, रक्शे धो रहे हैं और यही मसला है। हम लोग तब बोल बोल के थक गए। खवातीन का कहना था कि सड़कों पर पानी जमा होने से बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। ये गुजरने के लिए बच्चों को डेंगू मच्छर काटते हैं, बीमारी फैलता है, जरासीम होता है, हमारे लिए नुकसान है इसका। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया कि टूटी लाइन की जल्द मुरम्मत करवाई जाए ताकि वो सुकून से जिंदगी गुजार सकें। कैमरामैन वकास लोधी के हमरा राबेल अशरफ, सिटी 21। गेमाड़ी में 18 हलाकतों के बाद भी अली मोहम्मद गोट में जहरीली गैस फैलाने का जरिया बनने वाले कारखाने दोबारा से चल पड़े हैं। इलाका मकीनों ने इल्ज़ाम आयद किया कि ये पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया की मिली भगत से कारखाने चल रहे हैं।
18 अमवात का जिम्मेदार कौन? जिला किमाड़ी के अली मोहम्मद गोठ में जहरीली गैस फैलाने वाले कारखाने दोबारा खुल गए। इलाका मकीनों ने इल्जाम आयद किया कि अदालती अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया है। जिले इंतजामिया की मिली भगत से कारखाने खुल रहे हैं, जबकि DIG साउथ इरफान बलोच ने 10 से ज्यादा मुकदमा दर्ज करने का दावा किया था। वाक़े में मुलव्विस तमाम अफराद जमानतें लेकर आज़ाद हैं। ये जो हमारे पुलिस महकमा है, ये दूसरे इदारे हैं, ये सिर्फ कागज़ों में कार्रवाई कर रहे हैं, बाकी कोई लाए अमल नहीं है हुआ इस वक्त तक। DC का जो है बिज़नेस चल रहा है, ये फैक्ट्रियाँ खुलती हैं बंद होती हैं, खुलती हैं बंद होती हैं, ये उन लोगों ने ये अभी बिज़नेस चालू किया हुआ है। हमारे बच्चों की लाशों पे इन लोगों ने बिज़नेस शुरू किया है। इलाका मकीन कहते हैं जहरीली गैस फैलने की वजह से हम परेशान हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कारखानों से मुज़र सेहत धुआं, ताफुन और खाक उड़ाने से माहौलियाती आलूदगी पैदा होती है, जो खतरनाक और जानलेवा साबित हुई थी। 2 से 3 बंदे, बाकी जितनी भी फैक्ट्रियां हैं वो खुली हुई है, उनमें काम चल रहे हैं दिन रात करके, और वही कैफियत जो पहले वाली थी वही अभी चल रही है। हमारे को अपनी ज़िंदगियों का भी अभी डर लग गया है। हो सकता है ऐसा नहीं कोई 20-30 और अमवात इस चीज़ से हो जाए। वाक़ये से मुताल्लिक मोचको थाने में दर्ज मुकदमे में मुद्दई खादिम हुसैन को मुबैना तौर पर धमकियाँ मिलने लगी। ये गोदामों वाले जो है ना अभी भी मुझे धमकियाँ दे रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अली मोहम्मद गोठ में जहरीली गैस फैलने से ज्यादातर अमवात बच्चों की हुई थी। इलाका मकीनों ने आला हुक्काम से मुतालबा किया है कि इंसाफ फराहम किया जाए और वाक़ये में मुलव्विस अफराद को कानून के कटहरे में लाया जाए। कैमरामैन अजमल शाह के हमरा शाजिब हुसैन, सिटी 21। बढ़ते जराइम की वजह से कराची की जेलें भी छोटी पड़ गई हैं। शहर कायद की जेलों में गुंजाइश से ज़ायद कैदियों की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। शहर कायद में जराइम बढ़ गए, जेलें कम पड़ गईं, जेलों में गुंजाइश से ज्यादा कैदियों को रखा जाने लगा। जेल हुकाम के मुताबिक सेंट्रल जेल कराची में 6300 से ज्यादा कैदी मौजूद हैं, जो गुंजाइश से 159% ज्यादा हैं। मलीर लांडी जेल में 2200 कैदियों की गुंजाइश है, लेकिन जेल में 7000 के लगभग कैदी मौजूद हैं। मेरे पास इस वक्त जो है 2200 की कैपेसिटी है, ऑथराइज कैपेसिटी, उसके अगेंस्ट 7056 कैदी मेरे पास यहाँ मौजूद हैं। 1400 के करीब लगभग जो है वो फॉरेनर हैं, जिसमें हमारे पास इंडियन जो फिशरमैन हैं उनकी 675 की तादाद है। दूसरी जानिब सिंध भर की 23 जेलों में 13528 कैदी रखने की गुंजाइश है, मगर जेलों में मौजूद कैदियों की तादाद 23000 से जायद है। जेल हुकाम के मुताबिक सिंध भर की जेलों में सजा याफ्ता कैदियों की तादाद महज 20% है। समर अब्बास, सिटी 21। कराची में बढ़ते जराइम के बायस शहरी खौफजदा है। डिफेंस में मर्दमशुमारी के अमले को परेशानी का सामना है। रिहायशी अमले से उलझने लगे हैं। 7वीं मर्दमशुमारी शहरियों की बेजारी। कराची के पोश इलाके डिफेंस के रिहायशी मर्दमशुमारी करने वाले अमले से उलझने लगे। मर्दमशुमारी करने वाले अमले का कहना है कि वो खाना शुमारी के सिलसिले में किसी घर पर जाते हैं तो ख़वातीन ना सिर्फ उलझती हैं बल्कि लड़ भी जाती हैं। लोग मारने तक आ जाते हैं। कल भी एक लेडीज़ ने बदतमीज़ी करी। पुलिस अब मेरे साथ तो है, चलें 2-2 है मेरे साथ, तो कुछ लोगों के साथ पुलिस भी नहीं है सर। मर्दमशुमारी अमले की हिफाजत पर मामूर पुलिस एहलकारों से भी शहरी तल्ख सवालात करने लगे। मुहाफिजों से ड्यूटी कार्ड, कौमी शनाख्ती कार्ड मांगा जाने लगा। हम जाते हैं तो दरवाज़ा बजाते हैं, वो देखते हैं, हमें बताता हूँ भाई यूनिफॉर्म में हूँ, मेरा नाम लगा हुआ है, बोल रहा है आप अपना NIC दो, अपना सर्विस कार्ड दिखाओ। फिर NIC दिखाया, सर्विस कार्ड दिखाया, तब जाके उन्होंने माना कि आप जो है ना पुलिस वाले हो और वाकई आप जो है इस पे आए हो जो ना मर्दमशुमारी पे। मर्दमशुमारी कौमी जिम्मेदारी तस्वुर की जाती है, लेकिन कराची के पोश इलाके के मकीनों का रवैया मुआशरे के लिए सवालिया निशान है। कैमरामैन अजमल के साथ आज़ाद नोडियो, सिटी 21। कौमी एयरलाइन की जानिब से प्राइवेट आज़मीन हज के लिए किरायों का ऐलान कर दिया गया, जबकि सरकारी हज के तहत जाने वाले आज़मीन के किरायों का ऐलान वजारत मजहबी अमूर करेगी। कौमी फ़िज़ाई कंपनी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने रवां बर्स प्राइवेट आज़मीन हज के लिए किरायों का ऐलान कर दिया, जिसके तहत कौमी एयरलाइन 21 मई से 2 अगस्त तक हज फ़्लाइट ऑपरेशन जारी रखेगी। प्राइवेट हज के तहत साउथ शहरों कराची, कोयटा, सखर और हैदराबाद से जाने वाले आज़मीन के लिए फ़े मुसाफिर किराया 870 से लेकर $1180 तक होगा, जबकि नॉर्थ रीजन के हवाई अड्डों लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान और दीगर शहरों के लिए $910 से $1220
करराए मुकर्रर किए गए हैं। PIA हुकाम का कहना है कि सरकारी हज के तहत जाने वाले आज़मीन के किरायों का ऐलान वजारत मजहबी अमूर करेगी, जो मुमकिना तौर पर 3,10,000 से लेकर 3,30,000 रुपए तक मुतवक्को है। हुकाम के मुताबिक कौमी एयरलाइन तकरीबन 38,000 से ज़ायद आज़मीन को हुजाज मुक़द्दस पहुँचाएगी। PIA अपने हज फ्लाइट ऑपरेशन जद्दा और मदीना के लिए बोइंग 777 और एयरबस 320 इस्तेमाल करेगी। रवां बर्स पाकिस्तान से तकरीबन 1,80,000 आज़मीन फरीज़ा हज की अदायगी के लिए अर्ज़ मुक़द्दस जाएंगे। समर अब्बास, सिटी 21। नौ यूनिवर्सिटी के ओझा कैंपस में खून के खुदकार तज्जिए का निज़ाम नस्ब कर दिया गया। खून के तेज रफ्तार तज्जिए की टेक्नोलॉजी की आमद। डॉ यूनिवर्सिटी के ओझा कैंपस में हेमाटोलॉजी ऑटो मशीन सिस्टम का इफ्तिताह वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद सईद कुरैशी ने किया। नया नस्ब शुदा सिस्टम 1 मिनट से भी कम वक्त में खून के डिजिटल नताइज देगा। नए निज़ाम से डेंगू की तशखीस में फौरी मदद मिलेगी। डायरेक्टर हेमाटोलॉजी डिपार्टमेंट डॉक्टर उज़मा बुखारी कहती हैं कि अब 1 घंटे में 600 से जायद खून के नमूनों का तज्जिया किया जा सकेगा। मशीन में सिर्फ एक मर्तबा खून का नमूना रखने की देर होगी। नताइज मशीन पर अज खुद जाहिर होने लगेंगे। इससे कबल खून के नमूने की रिपोर्ट्स आने में 24 घंटे दरकार थे। असल में इसमें ये हो रहा है कि हर चीज़ ऑटोमेटेड, हम सैंपल इसमें इन करते हैं और उसके बाद जो है जो डिफरेंट स्टेप्स हैं सैंपल इनपुट करने से लेके डायग्नोसिस तक, वो सारा जो है मशीन में ऑटोमेटिक खुद ही हो रहा है। हेमाटोलॉजी डिपार्टमेंट की टेक्निकल मैनेजर हिना कुरैशी का कहना है कि अब हमें बार बार देखना नहीं पड़ेगा कि कोई नुक्स तो नहीं आ गया। इस सैंपल के दौरान कोई नुक्स होगा तो मशीन पर जाहिर हो जाएगा। इंसानी मुदाखलत सिर्फ नमूना मशीन में रखने तक महदूद है। हमारे पास पूरे कराची से भी और सम टाइम जो है आउट ऑफ कराची भी हमारे पास सैंपल्स आ रहे होते हैं, तो जिनकी हमें इमीडिएट रिपोर्ट करनी होती है। तो उसके लिए हमें ये फ्रंट लोडिंग इन्होंने दी हुई है, तो जिससे हमारा काम नहीं रुकता और हम लोग अपना काम स्मूथली वर्कफ्लो के साथ कर सकते हैं। महदूद कार निज़ाम की तनसीब से डेंगू और दीगर अमराज के मरीजों के खून में सफ़ेद और सुर्ख खुलियों की तादाद और दीगर तब्दीलियों को फौरी देखा जा सकेगा। कैमरामैन वकास लोधी के साथ राबेल अशरफ, सिटी 21। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तहत 18वीं माय कराची नुमाइश के दूसरे रोज़ शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। माय कराची नुमाइश में मुल्की व गैर मुल्की कंपनियों की जानिब से पेश की गई टेक्सटाइल, फूड, सोलर एनर्जी, ऑटोमोबाइल सेक्टर समेत मुख्तलिफ मसनूआत में शहरियों ने खुसूसी दिलचस्पी का इजहार किया। शहरियों का कहना था कि इस तरह की नुमाइश से उन्हें मुख्तलिफ अशिया से मुताल्लिक जानने और तफरीह के मौके हासिल होते हैं। एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है। एक तो ये है कि इंटरनेशनल लेवल का ये ट्रेड फेयर है, जिसके अंदर जो है आप देखें डिफरेंट मल्टी नेशनल प्रोडक्ट्स के यहाँ पे हमारे इम्पोर्टर्स भी हैं और आपको यहाँ पे जो है B2B कनेक्शन के लिए आपको इंटरनेशनली लोगों के से मिलने के लिए और बहुत सारी प्रोडक्ट्स का आपको आइडिया मिलता है। कराची में और पाकिस्तान में इस वक्त जिस तरह का माहौल है, महंगाई है, लोग चाहते हैं कि इस तरह की एंटरटेनिंग चीज़ें होनी चाहिए। थाईलैंड की कौंसल जनरल सिरी पोन का कहना था कि तिजारत के फरोग देने के लिए इस तरह की सरगर्मियां जारी रहना चाहिए। Karachi Chambers of Commerce and also like Kun Alif Sulaiman from Pak Thai Friendship Associations and Thai Airways. These are our partners here. मुंतज़मीन का कहना था कि मुल्की एक्सपोर्ट बढ़ाने के साथ साथ मुख्तलिफ ममालिक की मार्केट्स तक रसाई के लिए माय कराची नुमाइश संगे मील साबित होगी। कैमरामैन गुलफाम के हमरा, बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। आर्ट्स काउंसिल में छठा सिंध लिटरेचर फेस्टिवल दूसरे दिन भी जारी रहा। मेले में सिंधी सकाफती अशिया के भी स्टॉल्स लगाए गए। सिंध लिटरेचर फेस्टिवल के दूसरे रोज इफ्तिखार आरिफ, अंबरीन हसीब अंबर के सेशन समेत मुख्तलिफ सेशंस में शुरका ने गुफ्तगू की। फेस्टिवल में बदीन, ठट्टा, जामशोरो, मिट्टी, हैदराबाद समेत सिंध के दीगर इलाकों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल्स लगाए, जिसमें शहरियों की खरीदारी का तांता बना रहा। फेस्टिवल में अदब और सकाफत से गहरी दिलचस्पी रखने वाले भी शरीक हैं, जिन्होंने फेस्टिवल को खुशाइंद करार दिया। मेरे ख्याल में एक बात है कि सही करनी चाहिए, सच करनी चाहिए और खुल के करनी चाहिए, इश्यूज की बात है। लिटरेचर फेस्टिवल इतवार तक जारी रहेगा, जिसमें सिंधी शायरी, नसर, मौसीकी समेत मुख्तलिफ सेशंस का इनेकाद किया जा रहा है। कैमरामैन टीम के हमरा सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। स्टेप स्कूल्स की जानिब से गुलशन कैंपस में ओपन हाउस इवेंट का इनेकाद किया गया।
लूडो, चेस, पोर्ट्रेट, जंपिंग कॉस्टल, फूड स्टॉल्स और मैजिक शो। स्टेप स्कूल्स गुलशन कैंपस में सजा ओपन हाउस इवेंट, जहां तलबा के साथ साथ वालिदैन ने भी शिरकत की। ओपन हाउस की तकरीब में तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब और साबिक रुकने कौमी असम्बली आलमगीर खान ने भी शिरकत की। डायरेक्टर स्कूल सुहेल मुसानी ने इनका इस्तकबाल किया। तकरीब में शरीक वालिदैन और तलबा ने स्कूल की जानिब से किए गए इस इक़दाम को सराहा।